Okay. So next topic is transistor as oscillator. Transistor as an oscillator. It is a combination of actual and LC circuit beta. So transistor is used as an amplifier. इसमें जो formula use होता है अपने को for simplifying, frequency is equals to your 1/2 pi under root of your L into C. Frequency F is equals to your 1/2 pi under root of your L into C. L is known as of your inductance. L is known as of your inductance and C is known as of your capacitance. C is your capacitor. Okay. Negative feedback is used for the amplification to reduce the distortion beta, and positive feedback is used in the oscillators. ये छोटा सा concept है in the NCERT, उसको याद रख लो. Basically, negative feedback is used in the reducing the distortion, and positive feedbacks are being used in the oscillators part of relation. ठीक है, चलो हम लोग लॉजिक गेट्स कर रहे थे. लॉजिक गेट्स में हम लोग ने क्या क्या किया बेटा? We have done with your AND gate. AND gate का फॉर्मूला क्या है? Y is equals to your A dot B. Next one is OR gate. Y is equals to your A plus B. And third one is inverter, which is known as NOT gate. Y is equals to A bar or A dash लिख सकते हैं. So NAND gate is nothing but a combination of AND and NOT gate. A भी कर लिया. NOR gate is a combination of your OR gate and as well as of your NOT gate. ये भी हो गया. Then we have done the truth table of that one. And next one is we also done your exclusively OR gate. So exclusively OR gate is represented by the OR gate के सामने एक arc लगा दो, that will be an exclusively OR gate. So y is equals to A dash B plus of your A into your B dash. उसका truth table भी हम लोग ने यहाँ पर लिख लिया था basically. So let us try to do some of the relations for this one. एक छोटा सा point लिख लो बेटा यहाँ पर right now. De Morgan's theorem. De Morgan's theorem. So याद है किसी को? De Morgan states that the complement of the whole sum is equal to the product of the individual complements and vice versa beta. So I can write here. It states that the complement of the whole sum, is equal to the product of individual complements and vice versa. ठीक है, मान के चलो मेरे पास A plus B bar, this will be equal to your A bar dot B bar. अगर मेरे पास A dot B bar है कॉम्प्लीमेंट पूरा, तो ये बन जाएगा A bar plus of your B bar. ठीक है ना, इतना याद रख लो, काफी है. अगर प्लस है तो डॉट बन रहा है, नॉट निकाल रहे हैं, तो A डॉट B नॉट है तो A बार प्लस ऑफ योर B बार बन जाएगा. ये वेक्टर नहीं होगा, ये वाली बार होगा इस पे. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फॉर डूइंग द गुड नंबर ऑफ योर न्यूमेरिकल्स पार्ट ऑफ रिलेशन. ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा. इन द गिवन Boolean expression y is equals to A dot B bar plus B dot A bar if A is equals to 1, B is equals to 1, then y will be first option is 0, second option is 1,
थर्ड ऑप्शन इज 11, फोर्थ ऑप्शन इज 10. इट्स नॉट 11, 1110. कोई बोल सकता है क्या? देखो, इन द Boolean एक्सप्रेशन, एक्चुअली मुझे थोड़ा सर्दी और बुखार है बेटा, इसलिए थोड़ा वॉइस नीचे आ रही है. सो सी ट्राई टू डू इट आउट. In the given Boolean expression, y is equals to a dot b bar plus b dot a bar. If a is equals to 1, b is equals to 1, then y will be equal to your how much? मान के चलो इसको पूरा मैं c मान के चलो और इसको पूरा मैं d मान के चलो, ठीक है ना. तो c की वैल्यू कितनी है बेटा? c is equals to a dot b bar है ना, isn't it me? मतलब क्या? This is 1 डॉट मतलब कितना, एंड b बार मतलब कितना, 0. सो दिस विल बी इक्वल टू योर a is 1 डॉट मतलब हो गया एंड b बार मतलब 0. सो c is 1 एंड 0, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0. उसी तरह से अगर मैं d ले रहा हूं, d is equals to b बार डॉट a बार है, यानी दिस विल बी रेड एज ऑफ योर b की वैल्यू 1 है, डॉट इज नथिंग बट इक्वल टू योर एंड, ठीक है ना, एंड a बार इज नथिंग बट ऑफ योर 0. इसका रिजल्ट कितना आएगा? 0. यानी c is 0, b is also 0. तो c प्लस d कितना हो रहा है बेटा? 0 है. c प्लस ऑफ योर d विल बी इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0. तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आंसर इसका. क्लियर है? सर b की वैल्यू 1 है ना सर, फिर हम b बार 0 क्यों ले? कहां पर? ये b नॉट है ना, अगर b की वैल्यू 1 है तो नॉट में 0 हो जाएगा ना. हाँ ओके सर. इन्वर्टर. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो. इन द फॉलोइंग सर्क्यूट, the output y becomes 0 for the inputs. First one है a is equals to 0, b is equals to 1, c is equals to 1. Second option है a is equals to 1, b is equals to 1, c is equals to 0. और थर्ड वन है a is equals to, b is equals to, c is equals to 0. और फोर्थ ऑप्शन है a is equals to 1, b is equals to 0 और c is equals to 0. सर्किट डायग्राम दे रखा है दिस वन. यहाँ पर हो गया गेट इस तरह से, यहाँ पर एक गेट है और यहाँ पर इसका नॉट गेट है, ठीक है ना. तो ये हो गया इसका आउटपुट और ये यहाँ कहीं गया and it is being connected to this one like this. ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है आउटपुट y और y दे रखा है इसमें, और इसके अंदर होते हैं 2 इनपुट्स बेटा. तो ये हो गया इनपुट a, ये हो गया इनपुट b और ये इन्वर्टर है, तो ये हो गया मेरे पास c. बताओ, कोई बता सकता है क्या आंसर इसका? इन द फॉलोइंग सर्क्यूट द आउटपुट y बिकम्स 0, यानी y की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो ये कौन सा गेट है बेटा? ये कौन सा गेट है? एंड गेट है. अगर यहाँ 1 है और ये भी 1 है तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा? 1 होगा. उसका नॉट है तो y वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0. क्लियर है ये? इसके दोनों इनपुट्स 1 एंड 1 है तो यहाँ पर रिजल्ट 1 आएगा, लेकिन ये नॉट है तो 1 क्या बन जाएगा? 0. यानी इसका इनपुट जो आ रहा यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर आया कितना होगा? चाहो जल्दी जल्दी से बताओ. इसके लिए भी आना चाहिए अपने को 1.
अगर यहाँ पर 1 आना तो कंपल्सरीली यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. बता। 0, वेरी गुड। अगर ये 0 है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 1। उसका नॉट है तो 1 आ गया, तो सी की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। तो सी की वैल्यू तो 0 तीनों ऑप्शन में बताई दे रहा है, isn't it? So I can't eliminate anything right now. The only thing I can do is right now I can take the value of this input will be equal to how much for me? 0. तो C की वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए? 0। तो तीन ऑप्शंस में बता रहा। अब यहाँ पर देखो ये गेट कौन सा है? एंड गेट है। एंड गेट के लिए A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1, और B की वैल्यू भी 1। 1 and 1 output will also be equal to your 1. That means A should be 1, B should be 1 and C should be 0. So second option will be the answer for this. आया सभी को? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन देखो बेटा। The figure shows two NAND gates. The figure shows two NAND gates. Two NAND gates followed by a NOR gate. Followed by a NOR gate. The system is equivalent to. The system is equivalent to the following logic. Is equivalent to the following logic gate. इसका ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज आर गेट, सेकंड वन इज एंड गेट, थर्ड वन इज योर नैन गेट एंड फोर्थ वन इज नन। ठीक है ना, डायग्राम ऐसा कुछ दे रखा है। ये चैप्टर बेटा प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा, तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस एंड डोंट बी नेग्लिजेंस ऑफ कि मुझे आता तो आई नीड नॉट कीप द पेन एंड ऑन द पेपर टू डू द न्यूमेरिकल्स। इसका अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स निकलते हैं, इसको थोड़ा अच्छा खासा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है और थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ता है, बिकॉज फॉर्मुलेस बहुत है इसके अंदर और एनसीईआरटी कंपलसरी पढ़नी है। एनसीईआरटी मैंने आपको बहुत सारे असाइनमेंट भेजे हैं, उसको भी कंप्लीट करना है, और जो भी नहीं आ रहा है प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। ये हो गया x और ये हो गया y। इसके पास एक इनपुट है यहाँ पर, ये हो गया ये, और इसके पास एक इनपुट है यहाँ पर, ऐसा दे रखा है, दिस वन इज योर c। इसका इनपुट और इसका इनपुट यहाँ पर हो गया ये b। ठीक है ना, सो ये हो गया a b एंड c। चलो ट्राई करो सभी लोग, टेक 1 minute of your time and try to do it. The figure shows two NAND gates followed by a NOR gate. Followed by a NOR gate. The system is equivalent to the following logic. ट्रूथ टेबल लिख लो बेटा, A B C X Y और फाइनल में Z। ठीक है ना, A की वैल्यू 0, दूसरे पेन से ले लेता हूँ। A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1। जनरल ट्रूथ टेबल, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? A B C। C की वैल्यू भी यहाँ पर 0, 0. यहाँ पर 0 और दिस विल बी इक्वल टू योर 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। होता है ना बेटा? क्लियर है सभी को? X की वैल्यू किसकी वजह से?
सर सी की वैल्यू भी 0 या फिर 1? क्या बोले? सी की वैल्यू सर थर्ड वाले में 1 एंड 0 है ना, तो 0 आती है फिर। 1 and 0 1 ही होगा ना। 1 and 0 is 1, 1 and 1 is 1। नहीं, ये इसके साथ नहीं लेंगे ना, इंडिविजुअली ले रहे हैं सी की वैल्यू। ए बी सी 3 इनपुट्स हो गए ना। अब इसको तो जनरली अपने पास 2 ही इनपुट होते हैं, तो सी के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? 2 0, उसके बाद 2 1s। ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कोई बता सकता है? एक्स की वैल्यू के लिए इनपुट ये है और इनपुट बी। 0 एंड 0 कितना हो जाएगा? 0। इसका रिजल्ट अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए एंड बी का रिजल्ट एक्स पे लिख रहा हूँ। 0 और 1 कितना होता है बेटा? 0 एंड 1 कितना होता है? 0 एंड 0 ये आउटपुट है ना, तो 1 होगा ना, सॉरी, क्योंकि ए एंड बी 0 एंड 0 0 होता है, ये नॉट है, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास? 1। 0 एंड 1 इट विल बी 0, नॉट है, तो ये भी बन जाएगा मेरे पास 1। 1 एंड 0 0 है, नॉट है, तो ये भी बन जाएगा मेरे पास 1। 1 एंड 1 है, तो फिर उसके बाद इसको नॉट है, तो दैट विल बिकम फॉर मी 0। उसके बाद वाई। वाई के लिए इनपुट क्या है? बी एंड सी। वाई के इनपुट क्या है मेरे पास? बी एंड सी पार्ट ऑफ रिलेशन। तो इसके लिए भी कितना आ रहा है देखो, वाई का वैल्यू 0 एंड 0 0 होना चाहिए, नॉट है, तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 1। 1 1 एंड 0 1 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन नॉट है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 1। 0 एंड 1 0 होता है, नॉट है, तो ये भी हो जाएगा 1। एंड 1 एंड 1 विल बी इक्वल टू 1, लेकिन नॉट है, तो ये भी कितना बन जाएगा? 0। तो एक्स एंड वाई आ गया, तो अब जेड की वैल्यू बताओ। जेड के लिए कितना है? इज बिन फॉलोड ए नॉर गेट है, सो वहां पर क्या है? फॉलोड बाई ए नॉर गेट, यानी नॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एन और एंड नॉट गेट। 1 एंड 1 एक्चुअली क्या आएगा? 1 आएगा, लेकिन नॉट है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 0। 1 एंड 1 1 होगा, लेकिन नॉट है, ये भी कितना हो जाएगा? 0। 1 एंड 1 कितना होता है? 1 होता है, लेकिन नॉट है इस पे, सो दिस विल आल्सो बी 0। 0 एंड 0 0 होता है, लेकिन नॉट है, तो ये कितना बन जाएगा? 1। यानी आउटपुट आया 0 0 0 1। सो आउटपुट 0 0 1, मतलब कौन सा गेट होगा बेटा? एंड गेट। कौन सा गेट होगा? बोलना, याद रखना, फिर पेपर पलटाते रहे तो मुश्किल होगा। टाइम आ एंड रहा है गेट। एग्जामिनेशन हॉल के लिए। एंड गेट, वेरी गुड। ये हो गया एंड गेट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉब्लम्स ऑन सेमीकंडक्टर्स। सो इससे हम लोग पूरा टॉपिक खत्म कर लिए। उसके बाद असाइनमेंट्स जो भेजे थे उसके वर्किंग करेंगे बेटा। आज मैं थोड़े ओरल प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, और आई ट्राई टू सेंड यू इवन द असाइनमेंट ऑफ ट्रांसिस्टर। उसके बाद कल परसों जो भी असाइनमेंट मैंने आप लोग को भेजा उसका पूरा डिस्कशन एक दिन कर लेंगे हम लोग, 1 या 2 दिन। सी दिस क्वेश्चन बेटा, इन द circuit shown in figure, Zener diode is properly biased. Find power dissipated. Find power dissipated in diode. इस तरह से दे रखा है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और उसका पोटेंशियल दे रखा है 12 वोल्ट, और यहाँ पर इसका एक रेसिस्टेंस है इस तरह से, देन यहाँ पर इसका एक रेसिस्टेंस यहाँ पर इस तरह से, और इसके साथ एक जेनर डायोड है इस तरह से।
इसके पैरेलल में लगा हुआ है। तो VZ विल बी इक्वल टू योर 8 वोल्ट। और ये हो गया मेरे पास R2, और R2 की वैल्यू हो गई 1600 ओम्स, और R1 की वैल्यू हो गई मेरे पास 400 ओम्स, और इनपुट पोटेंशियल है 12 वोल्ट। चलो जल्दी से करो ट्राई। द सर्क्यूट गिवन इन द फिगर, Zener diode is properly biased. Find the power dissipated in this one. Power is nothing but what beta? V into your I. Power is nothing but equal to, power is equals to potential into current. तो पहले करंट निकालो, इसमें से करंट मान के चलो I जा रहा है। अप्लाई द किरचॉफ लॉ फॉर दिस क्लोज सर्क्यूट। तो ये हो गया पोटेंशियल 12। ये हो गया, मैं टर्मिनल्स ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया पॉइंट D, ये हो गया पॉइंट E, ये हो गया पॉइंट F, और ये हो गया पॉइंट G। सो व्हाट आई विल डू इज, दिस इज अ पावर फॉर्मूला। पावर आने के लिए मेरे पास पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल अप्रॉक्स इनपुट ऊपर लिए, एंड एज वेल एज ऑफ योर करंट। तो देख लेते हैं पहले करंट क्या होता है बेसिकली, देन विल ट्राई टू अप्लाई द पोटेंशियल फॉर दिस वन। और Zener वोल्टेज का वोल्टेज कितना दे रखा है, 8 वोल्ट। The power dissipated in the diode बोल रहा है, power dissipated in the diode, so power is equals to V into I. Now applying Kirchhoff law, for loop, close loop ले लो, उसके अंदर A to B, B to C, C to D, D to E, F, G, and as well as of your E. ठीक है। So if I'm applying the Kirchhoff law for this one, so क्या हो रहा है, देखो यहाँ से जा रहे हैं तो 12 टर्मिनल, so it is your 12, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस ऑफ 400 into your I, then I'm coming here, this two are parallel, so this one is negative terminal and this one is positive terminal, so whatever is coming first I'm trying to take that one, तो ये हो जाएगा मेरे पास minus of your 8 volt, isn't it? तो A B C D, D के बाद यहाँ पर आया E, यहाँ पर हो गया पोटेंशियल राइट नाउ फॉर मी माइनस ऑफ योर 8 वोल्ट, देन राइट नाउ और कुछ है क्या इसमें, सो कुछ भी नहीं है, तो दैट विल बी इक्वल टू योर 0। तो I की वैल्यू कितनी है, देखो जल्दी से, टोटल करंट की वैल्यू कितनी है, 100। हाँ 100 है। 12 माइनस 8 कितना, 4, सो I इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 400 होता है ना, सो दिस विल बिकम फॉर मी 4 एंड दिस वन इज 100, सो दिस इज योर 1/100। ठीक है, 1/100 कैन बी रिटन एज 10 मिली एम्पियर्स, लिख सकता हूँ ऐसा, 10 into 10 to the power of -3, तो 10 to the power of -2, सो कितना बना 1/100, क्लियर है। देन अब ये देखो बेटा, जो टोटल करंट आ रहा था यहाँ से I वैल्यू, इस जंक्शन पे आने के बाद इट विल गेट डिवाइड इनटू द 2 रेसिस्टर्स। तो एक तो करंट इसमें जाएगा I1 और एक करंट जाएगा इसमें I2, और हम लोग को चाहिए पावर डिसिपिएटेड इन द डायोड, यानी इसमें का डायोड, यानी यहाँ पर जितना पोटेंशियल है इस पे भी उतना ही पोटेंशियल। तो मैं अगर इस पे पावर निकालूं तो उतना ही पावर मुझे वोल्टेज डायोड के पास भी आ जाएगा। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 इज इक्वल्स टू योर, इसका पोटेंशियल कितना, VZ डिवाइडेड बाई R। VZ कितना है मेरे पास 8, उसका रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, देखो जल्दी से 1600, सो इट इज 1600। तो कितना आया जल्दी से देखो, बोलना, 5 मिलियन। 5 मिली एम्पियर्स, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 मिली एम्पियर। तो अगर I2 की वैल्यू आ गई तो क्या I1 की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, बिकॉज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I2 की तो वैल्यू मेरे पास है, I की भी वैल्यू मेरे पास वैल्यू है 10, ये हो गया I1, और I2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, ये हो गया 5 मिली एम्पियर्स इज योर I1। अब पावर निकालो, पावर डिसिपिएटेड P इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू V अक्रॉस योर Z इनटू योर I।
I will be equal to across this one how much I2. तो V कितना है बेटा 8, I2 कितना है 5, 5 8 जा 40, तो ये हो जाएगा 40 मिली वॉट। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो आई विल कीप दिस क्वेश्चन इन द moderate category while doing the numericals part of your relation beta. So be little bit careful while doing such type of your problems in the examination hall. ठीक है, तो और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो जल्दी से ट्राई करने की कोशिश करो। Zener diode of breakdown voltage Vz is equals to 10 volt is used in your circuit. The current through the load resistor is RL is this is given diagram बेटा। यहाँ पर एक रेसिस्टर है, इसको एक ज़ीनर डायोड है, यहाँ पर इस तरह से ये ज़ीनर डायोड है, और यहाँ पर एक टर्मिनल है, इनपुट पोटेंशियल दे रखा है 25 वोल्ट, और इसके अक्रॉस एक लोड रेसिस्टेंस है। ये लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू है RL इज इक्वल्स टू 1 किलो ओम। सो करंट थ्रू द लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाउ मच, और इसकी वैल्यू दे रखा है 400 ओम्स, और इसका पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट। चलो जल्दी से बताओ, दिस टू आर इन पैरेलल बेटा। Potential across your load resistance will also be equal to your 10. So I hope you might have been got the answer right now. आंसर आ गया होगा आप लोग को अब तक। करंट थ्रू द लोड रेसिस्टर पूछ रहा था, इसमें करंट कितना आ जाएगा, इसके पास पोटेंशियल कितना होगा, वट एवर इज द पोटेंशियल, ये हो गया VZ इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो यहाँ पर भी अपने पास पोटेंशियल हो जाएगा VZ इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। तो इसमें जो भी करंट जा रहा है V इज इक्वल्स टू I इंटू योर R, so VZ हो जाएगा ये, this is the load resistance, so I is equal, so I can write VZ divided by your RL, one step answer। VZ कितना है 10 है, RL कितना है 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम है मतलब 1000, तो ये जीरो चले गया तो ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर ऑफ -2, तो मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो दिस विल बिकम फॉर मी 10 मिली एम्पियर्स। आया सभी को, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। There is a electric circuit as shown. Find potential difference between points A and B. So this is a given diagram. यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक डायोड है इस तरह से, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, this is a point A, this is a point B, and this one is your 10 kilo ohms, this one is also your 10 kilo ohms, and here there is one more resistor connected to your battery like this। चलो जल्दी से करके बताओ, ये हो गया 30 वोल्ट और यहाँ पर हो गया 10 किलो ओम। Find the potential difference between the points A and as well as of your B. Potential है मेरे पास and the resistance are also there right now. ये डायोड क्या है बेटा, पॉजिटिव से कनेक्ट करा हुआ है, दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, सो इट विल कनेक्ट द करंट फॉर दैट वन। तो पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या हो जाएगा देख लो जल्दी से। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में बनेंगे बेटा? इफ आई ड्रॉ दिस सर्किट लाइक दिस, ये एक रेसिस्टेंस बनेगा, नीचे वाला भी एक रेसिस्टेंस बनेगा, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है एंड दिस विल बी टर्मिनल ऑफ दिस। ये हो गया 30 वोल्ट,
ये हो गया 10 और ये हो गया 10. 10 and 10 are in parallel, so 10 by 2 that will become for me 5. तो ये ऊपर हो गया resistance 5. Between the terminal B and between the terminal A, resistance is 5. And here there is one resistance, and here there is a positive terminal, negative terminal. These two are in the series combination. This is your 10 kilo ohms. This will be your 5 kilo ohms. Whatever current is flowing in the 10 kilo ohms, the same current will flow from the 5 kilo ohms because both of them are in the series combination. So if I need to calculate the value of your potential right now, potential across your A and B will be equal to your actual potential, that is nothing but of your V. मान के चलो, this one is R1, this one is say for example R1, and this one is say for example of your R2. So this will be equal to your R2 divided by R1 plus of your R2 into your potential V. करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग ने पढ़ा होगा पोटेंशियल अक्रॉस योर ए बी इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. R2 की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाय दिस इज 5 प्लस 10 इनटू पोटेंशियल इज नथिंग बट इक्वल टू योर 30. तो कितना बनेगा बेटा? दैट इज नथिंग बट 5 बाय दिस इज योर 15 इनटू योर 30. 15 ones are 15 twos are 5 into 2. This will become for me 10 volt. This is the potential to calculate the potential across the resistors in the series combination. Okay. अगर मुझे ए बी बोल के अगर ए सी बोलता यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाता? पोटेंशियल अक्रॉस योर ए एंड सी विल बी इक्वल टू, अब R2 के जगह आप R1 डाल दो. सो इट विल बिकम फॉर मी R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ योर R2 इनटू योर V पार्ट एफिलिएशन. ठीक है ना? क्लियर है? इसके असाइनमेंट्स जो मैंने भेजा वो आप करेंगे बेटा नेक्स्ट वीक पूरा. नेक्स्ट वीक मतलब क्या है? आज टुडे इज राइट नाउ ट्यूसडे है शायद ना. वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक हम लोग सेमीकंडक्टर टास्क के सिर्फ असाइनमेंट से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस पे रेगुलर क्वेश्चन आता है बेटा लॉजिक गेट्स वगैरह पे, और उस पे तो छोटा टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लो. हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत थियरी भी अच्छी तरह से याद रख लो. व्हाट इज ए फर्मी लेवल,